اور فتح کی دیوی پاکستان سے روٹ گئی۔ ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی شکستوں کا جمود نہ ٹوٹ سکا۔ جنوبی افریقہ سے میچ ہارنے کے بعد سیمی فائنل میں پہنچنے کی امیدیں بھی معدوم ہو گئیں، جبکہ شائقین کرکٹ کا سخت رد عمل شدید مایوسی کا اظہار کر دیا۔ بات ہے کہ جب سیاستیں چلیں گی ٹیم میں اندر، جب ہی رشتہ داری دوستی یاری دیکھی جائے گی تو یہی ہوگا، ٹیم کامیاب نہیں رہے گی، یہی ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ پہلی میں نیدرلینڈ سے تھی، وہ جیت گئے، انڈیا سے ہار گئے، ذلیل ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ میچ کا تو یہ تیسرا میچ جو ہارا ہے نا، تو اس کے بعد میں نے دیکھنے ہی چھوڑ دیے۔ مطلب پاکستان کی ٹیم سے کیا بن گئی، افغانستان کوئی ٹیم ہے اس سے یہ ہار گئے، تو یہ سوچنے کی بات، اس سے یہ کیسے ہار سکتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ یہ تو ورلڈ کپ کے لیے جا ہی نہیں، نہ ہی جاتے تو اچھا ہے، کیونکہ میچ تو انہوں نے ایک بھی صحیح طریقے سے نہیں کھیلا۔ کسی میچ میں انہوں نے اس طرح سکور نہیں بنایا کہ جس طرح ان کو بنانا چاہیے تھا۔ بھائی یہ جو ٹارگٹ انہوں نے ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کو دیا نا، ان کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا ہماری اگر بیٹنگ کو آپ حساب دیکھیں تو ہمارا جو اوپنر ہیں وہ کیا کرتے ہیں، 10 اوور کھیلتے ہیں تو 10 اوور میں وہ 30 سکور نہیں بناتے۔ اوپننگ پارٹنرشپ باقی ٹیموں کے آپ دیکھ لیں کارکردگی کس طرح رہ رہی ہے، مطلب اوپننگ آپ کی دے نہیں رہے، یہ شروع سے یہی جا رہا ہے آپ کو، اور آپ نے وہی اسپیل رکھا ہوا ہے، آپ کو چاہیے چینجنگ لائے اس میں۔ میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان پچھلے میچ بھی کھیلتا آیا ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کیا، نہ انہوں نے بیٹنگ صحیح کیا نہ بولنگ صحیح کیا۔ آتے ہیں ٹوک ٹوک کرتے ہیں، چھکے والی بال پہ ٹوک کر کے 2 رن لیا، اور ان کو دیکھ کے نہیں لگ رہا کہ یہ کرکٹر ہیں، یہ صرف ٹھڈے ہی مار رہے ہیں بال کو۔ آج کے میچ کے بارے میں تو یہ تھا کہ آج پوری قوم جو ہے نا وہ بڑی مایوس ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ جو ورلڈ کپ سے ہمیں امیدیں تھیں اور جو پاکستان کا ایک نام تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج سوالیہ نشان بھی سلیکشن کمیٹی پہ اٹھ رہے ہیں کہ نہ ہماری بولنگ چل سکی وہاں پہ، اور نہ ہماری بیٹنگ چل سکے گی۔ ساری سفارشی کھیلیں جس ٹیم میں، وہ ٹیم جیت ہی نہیں سکتی، اس میں آدھے زیادہ سفارشی ہیں۔ پاکستان ساؤتھ افریقہ سے ہار گیا، ان کی نہ بیٹنگ اچھی تھی نہ بولنگ اچھی تھی، تو یہ پی سی بی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چینج ہونا چاہیے، ان کی پالیسیز بالکل غلط ہیں، سلیکٹرز کو چینج ہونا چاہیے۔ آگے بڑھیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تیاریاں تیز کر دیں۔ عام انتخابات 28 جنوری کو کرانے کا خواہاں ہے۔ الیکشن کمیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ 30 نومبر کو الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا، جس کے 54 روز بعد انتخابات کرا دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انتخابات کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں اور التوا کی قیاس آرائیوں میں کوئی صداقت نہیں۔ اگلے برس مارچ میں سینٹ کے نصف اراکین کی مدت بھی مکمل ہو رہی ہے۔ خالی نشستوں پر سینیٹرز کے انتخاب کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے آئندہ منتخب ہونے والے اراکین حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دوسری جانب انتخابی حلقوں پر اعتراضات کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ اعتراضات پر سماعت 1 نومبر سے شروع ہوگی اور 1 ماہ کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ 30 نومبر کو انتخابی حلقوں سے متعلق حتمی فہرست شائع کی جائیں گی۔ اور استحکام پاکستان پارٹی کا آج پہلا پاور شو ہوگا۔ خانیوال میں پنڈال سج گیا۔ جلسے کے لیے 100 فٹ چوڑا اور 40 فٹ اونچا سٹیج تیار کر لیا گیا۔ پنڈال میں 30,000 سے زائد کرسیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جہانگیر خان ترین بذریعہ ہیلی کاپٹر جلسہ گاہ پہنچیں گے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان، فردوس عاشقوان سمیت دیگر رہنما بھی جلسے سے خطاب کریں گے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں، غیر قانونی افغان شہریوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید 4,709 افغان شہری وطن واپس چلے گئے۔ 153 گاڑیوں پر 246 خاندان پاکستان چھوڑ گئے۔ تورخم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اب تک 77,000 سے زائد افغان پناہ گزین واپس جا چکے ہیں، جبکہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کی ڈیڈ لائن میں صرف 4 روز باقی رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں مقیم تمام غیر قانونی غیر ملکیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ بغیر ویزا کے رہنے والے غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں صرف 4 روز باقی رہ گئے ہیں۔ حکومتی احکامات کے پیش نظر ترکھم اور چمن بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 4,709 افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے، جن میں 1,104 مرد، 952 خواتین اور 2,653 بچے شامل ہیں۔ افغانستان روانگی کے لیے 153 گاڑیوں میں 246 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی۔ اب تک 76,928 افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی
दोनों ममालिक और खित्ते के पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होगा। दूसरी जानिब केपी के 2 मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात सामने आए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से जा टकराई, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। धमाके में सिपाही बनारस खान और सिपाही अब्दुल करीम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक खैबर के इलाके वादी 13 में ऑपरेशन हुआ। फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द हलाक जबकि 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। भारतीय फौज की जफरवाल सेक्टर में शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग, भारत की क्वाडकॉप्टर ड्रोन की मदद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाकिस्तानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ड्रोन को मार भगाया। जवाबी फायरिंग से भारतीय फौजियों के जख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई है, जबकि भारतीय बॉर्डर फोर्स ने सिविल आबादी को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी माहिरीन के मुताबिक भारत ने दुनिया की तवज्जो कश्मीर में सिक्योरिटी के उभरते मसाइल से हटाने के लिए बिला इश्तियाल फायरिंग का ड्रामा रचाया। भारत ने बैनुल-अक़वामी और सिफारती सतह पर खुद को तन्हा होता देखकर बिला इश्तियाल फायरिंग से दुनिया की तवज्जो उस रुसवाई से हटाने की नाकाम कोशिश की है। भारत को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती हैं और इसका अमली मुजाहिरा माजी में भी देख चुका है। और अब शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास 31 अक्टूबर की डेडलाइन, 1 नवंबर से कार्रवाई होगी। सहूलतकारी करने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में जमीन का तनाज़ा, 5 इंसानी जानें निकल गया। चूंग में डेरे पर फायरिंग, 3 भाइयों और 1 बच्चे समेत 5 अफराद जाम बहक। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं, लाहौर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी के ज़रिए एहतमाम सालाना हफ्त रोज़ा रिसर्च वीक के तहत एक्सेलेंस अवार्ड 2023 का शानदार इनकाद किया गया। 88 माहिर मुहक्किकीन को 40 लाख रुपए मालियत के कैश इनामात तकसीम किए गए, जबकि रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने तकरीब का इफ्तिताह किया। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ज़ेर एहतमाम रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड 2023 की रंगारंग तकरीब में उम्दा रिसर्चर्स को तारीफी सर्टिफिकेट्स और इनामात दिए गए। तकरीब से इफ्तिताही खिताब करते हुए रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बुनियादी तरजीह दी जाती है। रिसर्च के जरिए ही नॉलेज क्रिएशन मुमकिन है और इंडस्ट्री के मसाइल का पायदार हल भी रिसर्चर्स ही पेश कर सकते हैं। Recently launched a Superior Impact Fund of 50 million in order to encourage our faculty to work on industrial collaborative projects. चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने अपने खिताब में कहा, कोई भी मुल्क रिसर्च के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। अगर खड़ा होना है, अगर इस मुल्क के लिए कुछ काम करना है, अगर इंसानियत के लिए काम करना है, तो यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल। एजुकेशनिस्ट, प्रोफेसर, रिसर्चर, believe me, if you stand together, you can make a hell of a difference in this. चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान, प्रो रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर नजामुद्दीन और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर तलत नसीर पाशा ने रिसर्च अवार्ड्स विनर्स को पेश किए। वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी तमगा इम्तियाज ने भी अवार्ड्स तकरीब में खसूसी शिरकत की। रिसर्च एक्सीलेंस अवार्ड में 22 रिसर्च पब्लिश करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीम इकबाल को टॉप रिसर्चर ऑफ द ईयर की सनद और 5,72,500 रुपए कैश इनाम दिया गया। कैमरामैन आसिफ खान और सनी जेम्स के साथ मायरा हाशमी, न्यू न्यूज़ लाहौर।
Yes, please, sir. Yes, please. और यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बंद रोड पर ज़ेर तामीर कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट का दौरा किया गया। न्यासी चौक तबाबू साबू मेगा प्रोजेक्ट पर पेशरफ का जायजा लिया गया, जबकि मोहसिन नकवी ने कहा कि मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की कोशिश की जाए और 7.3 किलोमीटर तवील बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील से लाहौर के किसी भी इलाके से मोटरवे तक फौरी रसाई मुमकिन होगी, जिससे वक्त और ईंधन की मद में भी करोड़ों रुपए की बचत होगी। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि 1 नवंबर से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। 31 अक्टूबर डेडलाइन है। पंजाब में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले गैर मुल्कियों को गैर कानूनी रिहाइश देने या फिर छुपाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी सख्त क्रैकडाउन किया जाएगा। वज़ीर आला ने काश्तकारों को सस्ती कपास न बेचने की भी तलकीन की। उन्होंने कहा कि गंदम की इमदादी कीमत का तयन अगले चंद रोज़ में हो जाएगा। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद पंजाब का अगले 4 माह का बजट सोमवार को पेश किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मंसूबे पर काम करने वाले मजदूरों से मुसाफा भी किया। और फैसलाबाद एक सनती हब है। गैस की कीमतों में इजाफे के बाद सनतकार शदीद परेशान है। ताजिर और सनतकारों का कहना है कि तवानाई के ज़राए की कीमतों में इजाफे से कारोबारी लागत बढ़ जाती है और बरामदात मुतासर होती हैं। तफसीलात देखिए शौकत वट्टू की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में गैस की कीमतों में इजाफे से टेक्सटाइल सनत के शोबा प्रोसेसिंग समेत दीगर शोबे बुरी तरह मुतासर हैं। गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से कारोबारी लागत बढ़ जाती है और टेक्सटाइल की बरामदात में कमी आ जाती है। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सनती माहिर आतिफ मुनीर का कहना है कि मौजूदा कारोबारी हालात के पेश नजर गैस की कीमतों में इजाफे की बजाय सब्सिडी की जरूरत है ताकि सनती पहिया चल सके। जब इंडस्ट्री की हमारी गैस बहुत महंगी हमें मिलेगी तो हम खित्ते में कंपटीशन नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगी। जब एक्सपोर्ट डिस्टर्ब होगी तो हम इंडस्ट्री बंद करने की तरफ जाएंगे। सनती और तजारती तंजीमों के रहनुमाओं का कहना है सनती बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमत गैस, बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे ताकि सनती शोबे की मुश्किलात कम हों और मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। उधर कराची में पीपल्स बसेस की तादाद में कमी के बायस शहरियों का मुश्किलात का सामना है। कम बसेस की सूरत में बस में गुंजाइश से ज़्यादा मुसाफिर सवार हो जाते हैं। कराची से हमाद यूसुफ की ये रिपोर्ट देखिए। कम बसेस हो गई हैं, प्लस उसके अंदर रश भी ज़्यादा होता है और हालांकि सर्विस अच्छी होने की वजह से लोग प्रेफर तो वही करते हैं, बट स्टिल क्या कहते हैं इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। सुबह के बाद गाड़ियाँ कम है, पैसेंजर ज़्यादा है और गाड़ियों में पैसेंजर जो है बहुत भर के आती है। गाड़ियाँ बहुत देर से आती है, जैसे R3 है, R1 है, 9 है, इनकी गाड़ियाँ बढ़ाई जाए। बस भरी हुई होती है, सफ़र में खड़े होके जाते हैं, मुश्किल तो होती है, थके हुए होते हैं इंसान, तो बसें बढ़ा देनी चाहिए। और लाल बसेस तो बहुत ज़्यादा आती हैं और इतनी भरी हुई होती हैं, कभी कभी इतनी होती है कि खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। जबकि शहरी कहते हैं बस में मुसाफिरों को गुंजाइश से ज़्यादा बिठा लिया जाता है। शहरियों का कहना है कि पीपल्स बस सर्विस की सूरत में उन्हें बेहतरीन सफरी सहूलत मैसर है, लेकिन बसों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि उन्हें घंटों स्टॉप पर खड़ा ना होना पड़े। कैमरामैन नौमान खान के साथ हमाद यूसुफ, न्यू न्यूज़, कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।